really a threat to the profession, artificial intelligence, or is it like another tool that chartered accountants will gradually learn to use? It is definitely a threat to the profession. So ये एक तरह का आप कह सकते हैं फियर है, इवन इन द माइंड्स ऑफ सीए स्टूडेंट्स, इवन इन द न्यूली क्वालिफाइड वंस, कि कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो करियर स्कोप था, वो एआई के आने की वजह से कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा. एंड इन द नियर फ्यूचर दे विल बी more problem in securing a job or lending into practice. There should be fear. ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इससे fear होगा भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते थे, अब वो बहुत आराम से ये टूल करेगा. सो जो भी एम्प्लॉयर होगा वो इन टूल्स की मदद से ये सारी वर्किंग कर पाएगा. बट अगर कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि इन टूल्स की मदद से एम्प्लॉयर के लिए जो भी टास्क या जो भी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयर फेस कर रहा है या और कोई क्लाइंट फेस कर रहा है, अगर उनको सॉल्व कर पाता है इस टूल की वजह से, जो कि पहले के सिनेरियो में आज की तारीख में बहुत आराम से हो सकता है, तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है इन द मार्केट वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. टोटली अग्री विथ योर पॉइंट, बट क्या इससे मार्केट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाएगा? सो श्योरली देखिए ये हर फील्ड में ही है. There is a question that many CAs are quietly asking today. Will AI change the CA profession forever? Because today we are seeing tools that can summarize 50-page code judgments in seconds, draft tax replies instantly, analyze thousands of financial entries within minutes. So naturally, the fear begins. People start asking, will AI reduce the role of chartered accountants? But here is the interesting part. AI cannot sign audit report. AI cannot appear before tax authorities. AI cannot take professional responsibility for financial decisions. So maybe the real question is not will AI replace CAs, but actually will chartered accountants who refuse to adapt become irrelevant? Hello everyone and welcome to another episode of Tax Table with CA Nandini, and today's topic is something that is slowly entering every profession across the globe. Artificial intelligence. Some people see it as an opportunity, some see it as a threat too, and many professionals are simply confused about what it actually means for their work. So today we want to break this topic down in a very practical and simplified way. To discuss this, I am joined by someone who has been closely observing how technology is impacting finance and professional services. With 14 plus years of experience in tax litigation and advisory, he has been on the front lines of handling complex direct tax, GST and corporate law matters. Someone who doesn't just understand the law but lives it in real world disputes and high stake decisions. CA Rohan Sogani sir, come and let's have a conversation with him. Thank you so much sir for joining us today. Thank you Nandini, thank you for having me on your show. Sir, आज के टॉपिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Anyone when hear the term AI, it's somewhat sounds very technical. Some professionals even connect it with the software engineers or the technology companies. But अगर हम आज in depth जाकर के देखें तो there are many AI tools which are assisting the chartered accountants as well, summarizing tax reports, any case laws, various types of works. So I want to understand from you that is it really a threat to the profession, artificial intelligence, or is it like another tool that chartered accountants will gradually learn to use? So to answer your question, whether it is a threat or not a threat, it is definitely a threat to the profession. But वो depend करेगा कि आप किस साइड ऑफ द टेबल पे हैं. अगर आप उसे एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं, उसको हर चीज़ में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपनी वर्किंग में यूज़ कर रहे हैं, सो इट विल नेवर बी अ थ्रेट टू यू. बट अगर आप उसे एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं रहे हैं, उसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप उसको आज नहीं समझ रहे हैं, तो इट विल बी डेफिनेटली अ थ्रेट टू वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग. सो एज फार एज द थ्रेट इज़ कंसर्न, दिस इज़ लाइक दिस. सेकेंड इज़ कि अगर आप जो जस्ट अनदर टूल की बात कर रहे हैं, सो जैसा मैंने कहा कि ये जो टूल है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है. तो अपन इसे जस्ट अनदर टूल ना समझें, बिकॉज देखिए एवोल्यूशन ऑफ अ प्रोफेशन में पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, फिर कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स के बाद हमने सॉफ्टवेयर यूज़ करना चालू करा, और अब टुडे वी आर यूजिंग those softwares or those computers through artificial intelligence.
सो जैसा ये ट्रांजिशन हो रहा है तो नॉर्मली ये जस्ट अनदर टूल नहीं है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी विल चेंज आवर लाइफ्स गोइंग फॉरवर्ड. सो हमारे को इसे एम्ब्रेस करना है. और एक नॉर्मल टूल जो कंप्यूटर से हम नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे उससे कंप्यूटर पे आ गए, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा. बट जो एआई टेक्नोलॉजी है ये इतनी फास्ट डेवलपिंग है, इतनी फास्ट ग्रोइंग है कि इसे जस्ट अनदर टूल नहीं कहा जा सकता है. सो इट विल हैव बिगर रेमिफिकेशंस ऑन द वर्किंग ऑफ एनी प्रोफेशनल, बी इट एनी फील्ड. एंड स्पेसिफिकली अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो उसमें काफ़ी वाइड रेंजिंग रेमिफिकेशंस अपने को आगे देखने को मिलेंगे. सर आज के सिनेरियो में देर आर मैनी एआई टूल्स, चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, जेमिनी. सो हाउ इज टेक्नोलॉजी एक्चुअली इवॉल्विंग अराउंड दिस स्पेसिफिकली फॉर द सीए प्रोफेशन? सो देखिए, जनरल टूल्स तो काफ़ी अवेलेबल है. जैसे आपने कहा कि चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लॉड है. बट उसमें अब आपको यूज़ केसेस देखने पड़ेंगे कि क्या ये टूल किस तरह से ये केपेबल है कुछ काम करने के, और अपनी वर्किंग में आप इसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं. बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग इसको इसलिए यूटिलाइज़ नहीं करते क्योंकि इनिशियली उनको लगता है कि क्या जवाब दे देगा, ये क्या ही ये इम्प्रूव कर पाएगा अपनी वर्किंग को. बट इवेंचुअली जब आप उसको यूज़ करने लगते हैं, देन यू विल फाइंड आउट कि ये टेक्नोलॉजी में आपको काफ़ी यूज़ बेटर होएगा. और इसे नॉर्मली जो अभी तक लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक रिसर्च टूल या एक चैटबॉट की तरह यूज़ कर रहे हैं. But now it is the time wherein this technology is transitioning from just merely a chatbot to an almost an AI employee or a AI co-pilot और co-assistant with you, जो कि आपका वो पूरा काम भी कर पाएगा. सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैटबॉट की तरह यूज़ भी करें और इसके अलावा रियल टास्क इसे दें, तो इट विल मेक योर लाइफ सिंपल. सर अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, जूनियर लेवल पे बहुत सारे टास्क होते हैं लाइक समराइजिंग केस लॉज, ड्राफ्टिंग रिप्लाईज, कंपाइलिंग डॉक्यूमेंट्स. एंड नाउ देर आर मैनी एआई टूल्स विच आर क्वाइटली एफिशिएंटली एबल टू डू दिस. सो ये एक तरह का आप कह सकते हैं फियर है इवन इन द माइंड्स ऑफ सीए स्टूडेंट्स, इवन इन द न्यूली क्वालिफाइड वंस, कि कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो करियर स्कोप था, वो एआई के आने की वजह से कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा. एंड इन द नियर फ्यूचर देर विल बी मोर प्रॉब्लम इन सिक्योरिंग अ जॉब और लैंडिंग इनटू प्रैक्टिस. देखिए, मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि देयर शुड बी फेयर एंड देयर शुड बी फेयर इन यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज वेल एज द एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज वेल. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो उनको फेयर इस चीज़ का होना चाहिए कि ये कितनी जल्दी इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें. सो दैट जितनी जल्दी ये टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस इन द मार्केट उनकी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी. तो फियर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इससे फियर होगा भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते थे, अब वो बहुत आराम से ये टूल करेगा. सो जो भी एम्प्लॉयर होगा वो इन टूल्स की मदद से ये सारी वर्किंग कर पाएगा. बट अगर कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि इन टूल्स की मदद से एम्प्लॉयर के लिए जो भी टास्क या जो भी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयर फेस कर रहा है या और कोई क्लाइंट फेस कर रहा है, अगर उनको सॉल्व कर पाता है इस टूल की वजह से, जो कि पहले के सिनेरियो में आज की तारीख में बहुत आराम से हो सकता है, तो वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है इन द मार्केट वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. और जैसे मैंने कहा कि बहुत इजीली ये टूल रिजॉल्व कर सकता है चीज़ें. जो एआई के पहले का जो एरा था उसमें चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी, इजीली अवेलेबल नहीं थी. बट आज के सिनेरियो में इवन फॉर न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल द नॉलेज इज़ अवेलेबल ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन. तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे तो वो इतनी नॉलेज गैदर कर सकता है जस्ट बाय क्लिकिंग प्रॉपर बटन, जिससे वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ सकती है, उसे प्रॉपर तरीके से वो पढ़े और अपने क्लाइंट या अपने एम्प्लॉयर के लिए उसे डिसाइफर करे और एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करे. सो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले के सिनेरियो में आज के सिनेरियो में काफ़ी अंतर है. आज के सिनेरियो में टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज थ्रू द यूज़ ऑफ दीज टूल्स इज़ वेरी वेरी ईजी. तो इसका मतलब ये है कि आपको ये टूल यूज़ करना आना चाहिए.
एंड सेकेंडली हर न्यूली जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको एआई नेटिव बनना पड़ेगा, कि उनको हर चीज़ में देखना पड़ेगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर वो सही तरीके से फ़ायदा उठा पाते हैं तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट इन द मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, पहले अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर वो एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहा था, आज के सिनेरियोज़ में वो काफ़ी अलग अलग एरियाज़ में काम कर सकता है, बिकॉज उसकी एफिशिएंसी मैनी फोल्ड्स बढ़ सकती है, क्योंकि एआई टूल एक फोर्स मल्टीप्लायर है, तो उसकी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से बहुत सारे और भी वो काम कर सकता है। इसी के साथ साथ पहले क्या होता था कि हमारे को बिज़नेस समझ में आता था एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे को उसकी टेक्नोलॉजी जिससे वो कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है वो समझ में नहीं आता था। बट अब सॉफ्टवेयर बनाना बिकम्स वेरी इजी, तो अगर हमारे को टेक्नोलॉजी पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है या हम उसे बहुत आराम से बना सकते हैं, तो जो बिज़नेस वाली नॉलेज है हम उसको इंटीग्रेट करके वी कैन इवन एक्ट एज अ स्लाइटली गुड इंजीनियर एज वेल, कि क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे को बिजनेसेस प्रोसेसेस पता हैं, और जो सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी वो अभी तक हमें पता नहीं थी, बट अब सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी सब आउटसोर्स हो गई है टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब उसको यूज़ करके इन दोनों को अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटीग्रेट कर ले तो ही कैन बी अ वेरी गुड असेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। टोटली अग्री विथ योर पॉइंट, बट क्या इससे मार्केट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाएगा? पहले अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को 10 सीएस की ज़रूरत है, बट विद द एडवेंट ऑफ एआई मे बी उनको 2 3 मे बी 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में उनका काम हो जाए। तो वो जो एक हाफ रेशो हो चुका है in comparison to what is earlier being required by the organizations, तो इससे तो कहीं ना कहीं न्यूली क्वालिफाइड वंस को लगेगा कि हमारा मार्केट और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। अगर हमने अपने प्रोफेशन की नॉलेज के अलावा अगर हमने टेक्नोलॉजी को भी उतनी ही पेस पे नहीं सीखा, वी विल बी आउटडेटेड। सो श्योरली देखिए, ये हर फील्ड में ही है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही नहीं, आज अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो इंजीनियर्स तो अगर ये भी बोल सकते हैं कि सारी कोडिंग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स कर रहे हैं, तो फिर उनकी क्या ज़रूरत है, बट स्टिल दे विल बी रिक्वायर्ड, बिकॉज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमारी इकोनॉमी में, और वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट होगी। बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पहले समझते थे कि अगर मैं 10 मेल भेज दूंगा, 10 फॉलोअप्स कर लूँगा क्लाइंट से, और अगर मैं एक्सेल शीट में कुछ फार्मूलाज लगा दूंगा तो उस वजह से वो मेरा काम हो जाएगा, बट नाउ दैट विल नॉट सफाइज। वो आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ही करेंगे, बट स्टिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल बी रिक्वायर्ड इन इक्वल नंबर्स, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग है और जो प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है, जो बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ही है, वो एआई टूल्स के पास नहीं है। एंड ऑल्सो अगर कोई पर्टिकुलर इशू आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कितना उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना है, कितना वो खुद डिसीजन मेकिंग करनी है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास ही है। दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। सो मेरा मानना ये है कि हमारी जो वर्किंग है उसको हमारे को पूरी तरह से चेंज करना पड़ेगा, और वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होगी आने वाले टाइम में, एफिशिएंट वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होएगी। जो हम फ्रिवलस वर्किंग करते थे और जो ग्रंट वर्क करते थे वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, और वो अच्छा भी है, बिकॉज रियल पावर, रियल नॉलेज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो उसी तरह से ही उभर के आएगी जब वो एक्चुअल वर्किंग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे। And to help the client or to help the employer to take proper decisions, strategic thinking में अगर वो इन्वॉल्व होंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, और कभी भी उनकी रिक्वायरमेंट कम नहीं हो। सर, अगर हम प्रोफेशन में अपने आगे बात करें, वेरी सेंट्रल टू आर प्रोफेशनल ऑडिट। ट्रेडिशनली हमारे ऑडिट में वी ऑलवेज यूज सैम्पलिंग टेक्निक्स, बिकॉज डेटा इतना ज़्यादा होता था, फाइनेंशियल डेटा, दैट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम स्टैट्यूटरी ऑडिट विद इन दी डिफाइंड टाइमलाइंस 100% डेटा को एनालाइज करके कंप्लीट कर सके। सो वी वर यूजिंग द सैम्पलिंग टेक्निक्स, बट नाउ देर आर मेनी AI टूल्स हु कैन एनालाइज द 100% financial data within seconds. So what do you think that
our traditional audit approach will also evolve in the coming years with the advent of AI? So yes, Nandini, you are absolutely right, and it will not only evolve; there will have to be a sea change in how auditors work, because अब पहले जो audit होती थी, अभी वो सब्सटेंटिव चेकिंग होती थी, और उसमें आपने कहा जैसे कि हम इतने डेटा को पूरी तरह से चेक नहीं कर सकते थे, तो उसमें सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट्स होते थे, उसमें मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट्स होते थे. बट आज के टाइम में जो AI टूल्स हैं वो 100% वर्किंग कर सकते हैं. दे आर केपेबल टू एनालाइज लॉट ऑफ डेटा, जो कि एक ह्यूमन को हो सकता है 5 दिन लगे, 10 दिन लगे एनालाइज करने में. दे कैन डू इट इन हाफ एन आवर और इन मिनट्स. सो इस वजह से 100% डेटा पे कंट्रोल किसी भी AI टूल की वजह से एक ऑडिटर का आ सकता है. सो प्रोबेबली जो सब्सटेंटिव चेकिंग, जो एक सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट था, दैट विल गोइंग फॉरवर्ड विल डाई डाउन, बिकॉज उसकी अब ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि 100% वर्किंग 100% डेटा को AI यूज़ कर पाएगा और एनालाइज कर पाएगा. सेकेंडली जो रिक्वायरमेंट्स होती थी कि हम शेड्यूल 3 से बैलेंस शीट बनाते थे, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से बैलेंस शीट बनाते थे, दैट कैन ऑल बी फेड इनटू AI टूल. तो वो आराम से वो बैलेंस शीट्स भी बन सकती हैं, तो उसका एनालिसिस भी बहुत आराम से हो सकता है कि कहाँ पे कोई नॉन कंप्लायंस है या डिस्क्लोजर नहीं है, तो वो बहुत आराम से AI टूल बता सकता है. इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल ऑडिट है, तो उसमें हमारे को अब ये देखना पड़ेगा, बिकॉज सी टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो भी ट्रांजैक्शन करने का तरीका बहुत चेंज हो रहा है. सो प्रोबेबली उसमें भी हमारे को चेंजेस विद टेक्नोलॉजी लेकर आने पड़ेंगे. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑडिट तो पूरी तरह से आने वाले टाइम में चेंज हो जाएगा. डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग द डेटा, और कहाँ कोई इश्यूज हो सकते हैं बाय एनालाइजिंग दैट डेटा, वो उस पे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पे ज़्यादा जोर रहेगा इन ऑडिट्स एज वेल. Sir, connecting with the previous question only, do you really think that some CAs will actually resist in adopting AI? Because कहीं ना कहीं AI के आने से जो हमारे ट्रेडिशनल वर्किंग मेथड्स थे, उनमें अगर कुछ इनएफिशिएंसीज थी, वो भी एक्सपोज होंगी. देखिए, CA प्रोफेशन में क्यों, हर एक प्रोफेशनल की लाइफ में इंक्लूडिंग CAs बहुत सारे टास्क होते हैं, जिसको अभी तक हम ये सोचते थे कि ये हमारे वर्किंग के पार्ट हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारे क्लाइंट्स को एक रिप्लाई डाल देते थे, या अगर कोई कोऑर्डिनेशन कर देते थे बिटवीन द टीम्स मैसेजेस के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू, वो हमारे को अभी लगता था कि वो वर्क है. जैसे टैक्स की मैं बात करूं, तो अगर कोई हम केस लॉज भेज देते थे क्लाइंट को, तो हमारे को लगता था कि वो हमने काफ़ी वर्किंग क्लाइंट के लिए कर ली है, या ओपिनियंस ड्राफ्ट करके भेजते थे तो लगता था काफ़ी वर्किंग कर ली है. बट आने वाले टाइम में देखिए, ये अनबंडलिंग ऑफ टास्क होगा, तो ये सारे टास्क जो भी ऐसे ग्रंट वर्क वाले हैं, या जो भी एक नॉर्मल नेचर के टास्क हैं, वो सारे AI टूल ही करेगा. आप जो एफिशिएंट CAs होंगे, वो ये सारी चीज़ को तो डेलीगेट करेंगे टू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, एंड दे विल कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग टू द क्लाइंट. क्योंकि देखिए, डिसीजन मेकिंग फॉर द क्लाइंट और फॉर द एम्प्लॉयर, अगर कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी है, या जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, because lot of information and knowledge is available to everyone on a click of a button, उसको कैसे एक पर्टिकुलर सिनेरियो में डिसाइफर करके अप्लाई करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. सो दैट डिसीजन मेकिंग कैन नॉट बी आउटसोर्स टू AI, तो वो उसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी, एंड वो मेरे हिसाब से एफिशिएंसी लाएगा. और वो एफिशिएंट CAs जो होंगे, जो ये दोनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, दे विल बी विनिंग इन टाइम्स टू कम. अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ऑब्वियसली उसके एडवांटेजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ न्यू ओपन अप हुई हैं, बट हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, इन विच देयर कुड बी सम रिस्क ऑल्सो इन अडॉप्टिंग एनी न्यू टेक्नोलॉजी. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक that could lead to the risk while adopting AI by the big firms, mid-sized firms, or any individual chartered accountant? देखिए, बिगेस्ट रिस्क वुड बी कि अगर हम सब कुछ ही आउटसोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को कर दें, और डिसीजन मेकिंग पावर भी उन्हीं के पास ही रख दें,
तो उस केस में एआई टूल ही डिसीजन मेकर होगा. दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक एनी सीए और एनी प्रोफेशनल वुड बी डूइंग. तो ये जो डेलीगेटिंग द डिसीजन मेकिंग है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, वो रिस्क है. क्योंकि डिसीजन मेकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो वो तो किसी प्रोफेशनल को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही करना पड़ेगा. वो आउटसोर्स नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स अगर कोई ग्रंट वर्क है, कुछ डेटा को फेच करने की बात है, कोई जैसे टैक्स की बात करूं तो केस लॉस को फेच करने की बात है, वो सारे केस लॉस को फेच करने का काम कर देगा. बट वो सब एनालिसिस की किस केस में क्या लॉ पॉइंट या क्या लीगल रेशो डालना चाहिए वो एआई टूल नहीं कर पाएगा. और अगर वो भी एआई टूल को दे दिया तो फिर उस केस में चांसेस ऑफ एरर्स इंक्रीज. तो एक तो ये है. सो डिसीजन मेकिंग अगर आपने दे दिया तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. सेकेंडली ये जो टेक्नोलॉजी है वो इनबिल्ट हेल्यूसिनेट करती है. बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इसी तरह की है कि ये हेल्यूसिनेशन होते हैं. ये नेक्स्ट वर्ड, ये एक जनरेटिव टेक्नोलॉजी है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसमें ये नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है. तो चाहे वो नेक्स्ट वर्ड सही हो या नहीं हो, वो हमेशा वो नेक्स्ट वर्ड को बताएगा. तो इस वजह से हेल्यूसिनेशन काफ़ी होते हैं. और अगर कि कोई भी प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगे कि ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है या जो भी नॉलेज दे रहा है उसमें कोई भी एरर नहीं है एंड इट कैन बी यूज्ड एज इट इज़, वो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी. सो प्रोबेबली हेल्यूसिनेशन इसे बोलते हैं. हेल्यूसिनेशन को काफ़ी ध्यान में रखना चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन जो एआई टूल दे रहा है उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए कि सही से दे रहा है नहीं दे रहा है, and then only work on it. Don't just directly take this information and give it to the client or give it to your employer. So वो अगर आपने ऐसा कर दिया तो बहुत दिक्कत आ जाएगी. बिकॉज हमारे को इनहेरेंटली समझना चाहिए कि इसमें हेल्यूसिनेशन होता है इसमें टेक्नोलॉजी में इनहेरेंटली. ओके सर, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इन द प्रैक्टिस एज वेल एज यूजिंग द टेक्नोलॉजी, what 3 skills you will suggest to any CA student or the newly qualified one to start, learn or to have habitual with it in the era of technology? देखिए हमारे को बहुत बार ऐसा होता है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाते हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं तो हम लर्न करना छोड़ देते हैं. बट टुडे इज़ द डे एंड एज जहाँ पे लर्निंग हैज़ टू बी फॉर लाइफ. सो जो लर्निंग की स्किल है उसको किसी भी प्रोफेशनल को एंड मोर स्पेसिफिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. सेकेंडली जो भी एआई नेटिव बने, हर चीज़ में देखें कि एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपने एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर एफिशिएंसीज. एंड थर्डली हमारे को इमोशनल कोशेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा. प्रोबेबली आई फील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट कोशेंट से इमोशनल कोशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देखिए एआई टूल will not be able to explain the knowledge or the output to a particular employer or to a particular client. इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. सो उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि वो अपने क्लाइंट की या अपने एम्प्लॉयर की तकलीफ़ें समझें और उसको अप्लाई करें जो भी इंफॉर्मेशन एआई टूल से मिली है. और इनफैक्ट उस ये काबिलियत डेवलप करें कि उसे वो समझा भी पाएँ कि क्या इंफॉर्मेशन है और किस तरह से इसे यूटिलाइज करना है. सो प्रोबेबली इमोशनल कोशेंट विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो एज टू बी एबल टू कनेक्ट टू द क्लाइंट, connect to the requirement of the client, connect to the requirement of your colleagues, connect to the requirement of your organization and then deliver. So before we move to rapid fire, if you want to give a one-liner advice to the profession successors, the young chartered accountants, what will it be? Probably embrace AI, use it as much as possible. कोई भी काम करें उसमें देखें कि हम कैसे इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की तरह से यूज़ कर सकते हैं. एंड क्यूरियोसिटी लेवल अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा दें. यू विल हैव टू बी क्यूरियस. द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच वी विल बी embracing going forward, one will have to be as curious as possible to learn, unlearn, learn, unlearn. So now the time for rapid fire. I'll give you some statements. You will be having 2 minutes to speak the first thought that came to your mind. Right. Okay, sir, let's begin. So the first statement is,
Which part of CA's work is most vulnerable to AI today? Audit, tax, or advisory? So probably all the three are equally vulnerable, I feel. As a profession or as a chartered accountant, जो भी हम काम कर रहे हैं वो everything is vulnerable. In fact, not only chartered accountants, जो भी knowledge workers हैं किसी भी फील्ड में हों, एवरीथिंग इज़ वल्नरेबल. सो हमारे को डिसाइड करना है कि हम इस वल्नरेबिलिटी को कैसे फ्लिप करें और कैसे इस टेक्नोलॉजी को टू आवर एडवांटेज यूज़ करें. तो अगर मैं टैक्स की बात करूं, तो अगर मैं रिसर्च वर्क एआई से करवा कर बेटर सबमिशंस बना पा रहा हूँ टू बी गिवन टू द टैक्स अथॉरिटीज़, तो वो एक हमारे लिए एडवांटेजेस पोजीशन हो जाएगी. सो all the three fields will be equally vulnerable. It is we who will decide कि कैसे इसको embrace करना होगा. Second, bigger teams without AI versus concentrated team with AI. See, concentrated team with AI is very very important. Probably पहले के time पे the bigger the team, the bigger areas one could do. बट आज के टाइम पे अगर कोई छोटी भी टीम है और अगर वो टूल्स को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है, प्रोबेबली दे विल सक्सीड मोर देन अ बिगर टीम नॉट यूजिंग एआई. सो द आंसर इज मे बी अ शॉर्टर टीम बट द यूज ऑफ एआई इज मस्ट. Sir, the third statement, AI as a master or AI as an assistant? So definitely AI as a assistant, and probably we should not treat AI as a pilot. We should always treat AI as a co-pilot. The day we treat AI as a pilot, तो वो बिल्कुल उस दिन हमारी वर्किंग सारी समाप्त हो जाएगी. तो हमारे को हमेशा AI एज अ को पायलट एज अ असिस्टेंट ही यूज़ करना है, एज अ वेरी एफिशिएंट असिस्टेंट आई मस्ट से. तो उसी तरह से यूज़ करें, मास्टर नहीं बनने दें उसे. सारी डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आप अपने पास. Advent of computer or advent of AI, which is better? सो प्रोबेबली एडवेंट ऑफ कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा बेटर है एडवेंट ऑफ एआई, बिकॉज एडवेंट ऑफ कंप्यूटर मे बी टुक 15, 16, 17 ईयर्स, बिकॉज 1990s 95 से कंप्यूटर्स हुए और अब हम कंप्यूटर काफ़ी यूज़ कर रहे हैं. एडवेंट ऑफ एआई हैज़ बीन वेरी ग्रेट, बिकॉज आपने अगर देखा होगा कि 2023 से जो ये टेक्नोलॉजी और आज हम 2026 में बैठे हैं, तो ये 3 साल में ही टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है. एंड प्रोबेबली जो भी एआई को यूज़ कर रहा है वो देख रहा होगा कि इवन अ वीक्स टाइम इज़ वेरी लॉन्गर फॉर एआई, क्योंकि हर वीक या हर डे कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया प्रोडक्ट ये सारी कंपनीज लेकर आ रही हैं. सो एडवेंट ऑफ एआई इज़ मच बिगर एंड फार कॉन्सिक्वेंसेज देन एडवेंट ऑफ कंप्यूटर. Last one, emotional quotient or intelligent quotient, what is more relevant? Emotional quotient for sure, because see, intelligence is widely available and probably the cost of intelligence will also reduce, and it will be at some point of time zero. But emotional intelligence or emotional quotient will have to be there, because humans can better understand everything and they can disseminate the information for the users in a much better way rather than a AI tool. ओके सर, ऑनेस्टली आज के कॉन्वर्जेसन के बाद एक पर्सनली मेरा बहुत बड़ा मिथ ब्रेक हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं आई वॉज ऑल्सो इन अ फियर बीइंग अ यंग चार्टेड अकाउंटेंट दैट आगे का क्या स्कोप है इन द प्रोफेशन. बट या दिस इज़ मच क्लियर दैट AI is not here to change anything, it's only here to reshape the profession. So thank you so much, sir, for giving such an insightful thoughts over this particular topic, and I'm really looking forward to have more such insightful conversations with you in the future. Thank you so much for being here. Thank you, Nandini. My pleasure. Today's conversation proves one thing: AI is not the biggest threat to the CA profession. Not adopting the same is the actual one. Because in the coming years, it won't be CA versus AI. It will be CA using AI versus CA ignoring it. And the gap between the two will be bigger than we can imagine. So the real question is, when the profession evolves, will you evolve with it? Let me know in the comment section, and thank you everyone for watching. See you in the next episode of Tax Table. Till then, stay tuned. This is CA Nandini Gupta signing off.